Hello everyone and welcome to EduTap YouTube channel. Today I am here to discuss with you about ICAR AO 2021 examination, and in this video we are particularly targeting the tier 1 of ICAR AO examination of 2021. Friends, as we all know that ICAR has released this notification for AO examination, administrative officer examination, and the exam will be conducted in 2021. The tier 1 is scheduled to be conducted on 3rd of October of 2021, right? And the syllabus that has been provided by ICAR, that syllabus is very similar to the syllabus we also see in the examinations conducted by Union Public Service Commission or UPSC, right? So this is a very good opportunity for all those aspirants who have been preparing for various UPSC examinations, particularly the civil services examinations or other examinations of different state service commissions also. So all those aspirants can check the syllabus of ICAR and they can very carefully gauge out that the syllabus is very similar for both these examinations and the preparation pattern is also going to be very similar, right? But it is also important, friends, to know that what are the important topics of all the particular subjects, because the syllabus provided is very vast. If we talk about specific subjects of general knowledge part, we can see that history, economy, polity, geography, science and technology, as well as agricultural issues and research in the agricultural field, these are important topics out of which you will be asked 50 questions in the tier 1 exam only. So it is very important that we find out how can we streamline our preparation, how can we prepare smartly, how can we identify some important topics and focus on those topics to gain out the maximum efficiency out of the efforts put by us, right? So in that I am here to help you. I am here to talk about the subject of geography. This subject of geography is a very important part of tier 1 examinations. First section, if we talk about the pattern of tier 1, we all know that about 200 questions will be asked in the tier 1 examinations. Out of those 200 questions, 50 questions will be dedicated to the general knowledge section. So for all the aspirants who are not aware about the pattern of ICAR AO tier 1 examination, let me again enlighten all of you. First of all, GK part will be 50 questions, right? And out of these 50 questions, the questions will be from polity, from geography, economy, science and technology. So we can expect about 5 to 10 questions being asked from the subject of geography. And these 5 to 10 questions can be answered correctly if we target certain specific topics in the vast syllabus of geography. And there I am also going to help you. But before proceeding ahead with the session and telling you about the important topics, let me provide you with the idea about the course which has been launched by EduTap for aspirants who are preparing for Administrative Officer Examination of 2021. The Gold course features. The Gold course is the course which is targeting both Tier 1, Tier 2 as well as the interview part of the examination. So all A to Z needs are covered in the Gold course. If we talk about the features of this course, complete handouts and videos for history, polity, governance, geography, all the pillars of the GK part of our examination, they are being covered. हैंडआउट्स आपको मिल रहे हैं, आपको वीडियोस मिल रही हैं, इसके साथ आपको फुल वीडियो कोर्स जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का भी यहां पर अवेलेबल हो रहा है, जो कि हमारा सेकंड सेक्शन है हमारे टियर 1 के एग्जामिनेशन में. आपको क्वांट्स के, मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको रीजनिंग की पजल्स आने वाली हैं, आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसके साथ ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो बेसिकली द पेपर विच इज एन एप्टीट्यूड स्टाइल ऑफ पेपर विल आल्सो बी देयर. इसके साथ आपको 2020 अक्टूबर से लेकर के सितंबर 2021 तक के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की कवरेज आपको अवेलेबल होने वाली है. एंड ऑल दीज करंट अफेयर्स दे विल बी इन फॉर्म ऑफ अ मैगजीन, जहां पर आपको पूरी होलिस्टिक इंफॉर्मेशन अलोंग विद फैक्चुअल डेटा अवेलेबल होगा. इसी के साथ हम आपको टियर 2 के लिए पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द 4 पेपर्स, पेपर 1 जहां पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर की बात करते हैं, पेपर 2 जहां पर हम पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईसीआर के रूल की बात करते हैं, पेपर 3 जो कि एक एसए का पेपर होगा, एंड पेपर 4 which will be dedicated to ethics, integrity and aptitude, very similar to the pattern of the UPSC mains examination. And all these papers, they will be comprehensively covered in this gold course of ICAR AO 2021. This course is available in only 5500 rupees, and if you use the code early15, अगर आप early 15 कोड को यूज करते हैं, you will also be getting 15% off on this particular course. कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई और कंटेंट आपको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है. जितना भी आपको कंटेंट चाहिए, दिस विल बी अवेलेबल इन दिस कोर्स अलोंग विद दी स्ट्रैटेजी सेशंस, अलोंग विद सेशंस जो आपको एडुटैप के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे या कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगे, जो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे.
Similarly, for aspirants who only want to prepare specifically for tier 1 examination, the silver course has also been launched, and this course is only covering the tier 1 portion, not tier 2, not interview, and this course is available in 4,000 rupees only, right? 4,000 rupees, and if you use the code early15 again, you will get flat 50% discount. ठीक है, सो ये तो बात हुई हमारे कोर्स की, और मैं चाहूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो आईसीआर एओ की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की किसी और एग्जामिनेशन की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत एक अच्छा मौका है कि आप अपने यूपीएससी एग्जाम की रिवीजन करना चाहें तो वो भी यहां से हो जाएगी, और इसी के साथ आप एक अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा जो करियर है एग्रीकल्चर रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के फील्ड में, वो भी आप लोग यहां पर पा सकते हैं, राइट? अब देखो फटाफट से हम बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। द मेन क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी मस्ट कवर फॉर ज्योग्राफी। वी हैव सिफ्टेड थ्रू द एंटायर सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर टियर 1, एंड टियर 1 में जो 5 to 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हमें दिखने वाले हैं, दोस क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर हमारे टियर 1 के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वो कवर किया गया है। पूरा जो चैप्टर है आपको अवेलेबल हो रहा है। उस चैप्टर के अंदर आपको 4 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि इस पूरे चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझा रहे हैं। सो इस चैप्टर के अंदर देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे ध्यान देने की हमें ज्यादा जरूरत है और जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें आने की उम्मीद है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ्स इंटीरियर। अर्थ्स इंटीरियर स्ट्रक्चर, हाउ अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट है, मेंटल है, अर्थ का कोर है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी थिकनेस क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को हम अपनी स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हमारी सोशल साइंसेस की बुक्स के अंदर, ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर, एंड नाउ दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग मेंस एग्जाम, अपकमिंग आईसीआर एग्जामिनेशन। Similarly, various exogenic landforms. Various exogenic landforms, if I talk about, I am talking about various landforms which are made by rivers, like जैसे वैलीज बनती हैं हमारी, ठीक है, हमारे वाटरफॉल्स बनते हैं, राइट? रिवर के एक्शन के साथ साथ विंड एक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल हमारी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं। All these different terms are basically landforms which are made because of certain exogenic agent. पानी के एक्शन की वजह से, हवा के एक्शन की वजह से, सी वेव्स के एक्शन की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, विंड की वजह से, जब भी हम किसी लैंडफॉर्म को बनते हुए देखते हैं तो वो एक एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म है। ये सारी लैंडफॉर्म्स आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कोर्स में भी कवर करवाई गई हैं, और अगर आप चाहें एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर और थ्रू अदर ऑनलाइन मीडियम्स यू कैन आल्सो गेज द नेम्स ऑफ ऑल दीस डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। ये सब लैंडफॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो लैंडफॉर्म्स कौन से एक्सोजेनिक फैक्टर के एक्शन की वजह से डेवलप होती है, ठीक है। इसी के साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, दीज टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर देयर, जो कि आपको बहुत प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अक्सर हमें टेक्टोनिक प्लेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दोनों थ्योरी के बारे में कुछ चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहला, हु हैज गिवन दीज थ्योरीज, ठीक है, ये थ्योरी किसने दी है। इसके बाद ये थ्योरी क्या चीज एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी में बेसिकली हमें बताया क्या जा रहा है, और इस थ्योरी के एविडेंसेस क्या है, प्रूफ क्या है कि ये थ्योरी जो है वो करेक्ट है, राइट। सो दीज 3 थिंग्स आर टू बी कवर्ड फॉर दीज 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज। हु हैज गिवन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक, ये हमें बता क्या रही है, एंड व्हाट इज द एविडेंस टू प्रूव दैट दीज 2 थ्योरीज आर करेक्ट, राइट। ये हो गई हमारे जियोमॉर्फोलॉजी की बात। इसके बाद अगर हम क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर पे जाएं तो दिस इज अ वेरी वास्ट चैप्टर। इट कवर्स एंटायर आवर एटमॉस्फेयर, डिफरेंट प्रोसेसेस एंड फिनोमिना व्हिच गो ऑन इन आवर एटमॉस्फेयर। इतने बड़े चैप्टर के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पिक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक हम जाएंगे। उन लेयर्स में क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, किस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स के अंदर, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड। नेक्स्ट, विंड पैटर्न्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स, कौन से वर्ल्ड के रीजन में कौन सी विंड्स ब्लो कर रही हैं, एंड विंड्स के ब्लो करने का रीजन क्या है, ये सारे जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी हम लोगों को यहां पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेजर climatic types, this is the most important part of our climatology chapter, specifically looking at the pattern of ICAR examination, जहां पर आपको ज्योग्राफी के 5 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ये नंबर जो है कम ज्यादा भी हो सकता है, 5 to 10 क्वेश्चंस हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि ज्योग्राफी से हमें देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें वर्ल्ड में मिलने वाले जो मेजर क्लाइमेट के टाइप्स होते हैं उन पे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट,
there is a specifically different monsoonal climate, there is a different British type climate, savanna type climate, a steppe type climate. So all these different climatic types are comprehensively discussed in our course as well, and you can find out about these climates in various standard books like NCERTs also. लेकिन जरूर से जरूर आपको मेजर क्लाइमेटिक टाइप जो वर्ल्ड के हैं वो एक बार पढ़ के एग्जाम के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इंपॉर्टेंट वेदर फिनोमिना, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं न्यूज में कई बार हमें इन फिनोमिना के बारे में सुनने को मिलता है। हम मॉनसून्स की बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, अल नीनो की जो सदर्न ऑसिलेशन होती है इसकी बात करें। सो ऑल दीज फिनोमिना दे आर फ्रीक्वेंटली इन न्यूज and they are also very closely associated with Indian agriculture, right? So if we talk about monsoons and cyclones which hit the eastern western coast of India, all these phenomena they have a bearing on Indian agriculture, और इस वजह से ये सारे phenomena जो है वो important हो जाते हैं। इनको भी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स पे चले, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर के चैप्टर के अंदर वी विल बी लर्निंग बेसिक फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट ओशंस। अभी हमारे जो ओशंस हैं 5 ओशंस हो गए हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। सो अबाउट ऑल दीज ओशंस हमें उनकी बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए कि साइज कौन से ओशन का क्या साइज है, ऑर्डर क्या है ओशंस के साइजेस का, और कौन सी जो कंट्रीज हैं कौन से ओशंस के साथ अपने शोर्स को शेयर करती है, अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। ये जो बेसिक हमारी मैप की नॉलेज है वो भी यहाँ पर काम आएगी। इसके बाद लोकेशन ऑफ मार्जिनल सीज। मार्जिनल सीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दे आर मार्जिनल सीज ऑफ इंडियन ओशन। सो एक बहुत बड़े ओशन के जो पार्ट्स होते हैं, जो कोस्ट के पास वाटर बॉडीज होती हैं, उनको हम सीज, गल्फ्स, बेज का नाम देते हैं। तो ये सारी जो मार्जिनल सीज हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ओशंस के साथ इन सीज को आप लोग लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मार्जिनल सी इंडियन ओशन का पार्ट है, कौन सा मार्जिनल सी वो अटलांटिक ओशन का पार्ट है या पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। After that, we will talk basically about ocean currents also. Ocean currents के बारे में आपको क्या पता हो? Warm and cold currents. The names of different warm and cold currents and in which part of the world, in which part of the which ocean they are flowing. ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। Basically, in every ocean there are about 6 to 7 currents. राइट, सो 6 to 7 करंट्स इनटू 5 ओशंस। हमें यहां पर 30-35 के अराउंड करंट्स के नाम जो है वो याद रखने पड़ सकते हैं। ऑल 35 करंट्स दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 35 में से भी अराउंड 20 करंट्स के ऐसे नेम हैं जो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से ओशन में ये करंट्स फ्लो करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। देन वी टॉक अबाउट बायोजियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। मेजर सॉइल टाइप्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एलुवियल सॉइल क्या है, सैंडी सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल क्या है, हमारी जो ग्रासलैंड्स की जो चेरनोजन सॉइल होती है उसका प्रॉपर्टी क्या है। सो ऑल दीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सॉइल टाइप्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज द एग्जाम इज आल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्जाम इज आल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वी आल्सो मस्ट बी अवेयर अबाउट मेजर सॉइल टाइप्स एंड मेजर वेजिटेशन टाइप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, इक्वेटोरियल है, हमारी कॉनिफेरस वेजिटेशन है, डेसिडुअस वेजिटेशन है, थॉर्नी वेजिटेशन है, बुशेस हैं, हमारे ट्रीज अवेलेबल नहीं है, ग्रासलैंड है। किस तरीके की वेजिटेशन कैसे क्लाइमेट में अवेलेबल होती है, वर्ल्ड के कौन से रीजन में किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया की फ्लोरा एंड फौना, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हमारी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस अगर हमें फ्लोरा फौना के देखने को मिलेंगे, दे विल मोस्ट लाइकली बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। कोई मेजर स्पीशीज अगर न्यूज में चल रही है, कोई इंडिया का फॉरेस्टेड रीजन अगर न्यूज में चल रहा है किसी कारण से, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। Next up, let us talk about Indian geography. Now, this is most important part. And according to me, out of 5 or 10 questions of geography which will be asked, most of the questions will be from Indian physiography and Indian biogeography part. अभी तक जो हमने बेसिक ज्योग्राफी की बातें की हैं वो सब बेसिक ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं, एक या दो क्वेश्चन वहां से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारा इंडियन फिजियोग्राफी है, इंडियन बायोजियोग्राफी है, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द इंडियन ज्योग्राफी, इसमें से आपको बल्क ऑफ द क्वेश्चंस जीके सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। आपको इंडिया की जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिल रेंजेस हैं, इनका आपको नाम पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयन रेंजेस एज वेल एज हिल रेंजेस इन दी पेनिनसुलर इंडिया। सो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया के जो विंध्यास हैं, सतपुरास हैं, मैकाला हिल्स हैं, और जो सदर्न इंडिया में हमारी कार्डमम, नीलगिरी हिल्स हैं, अनामलाई हिल्स हैं, इन सभी हिल रेंजेस की लोकेशन आपको आइडिया होना चाहिए। आपको बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए कि हिमालयास की डिफरेंट रेंजेस में हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पूर्वांचल हिल्स हैं, स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन स्टेट्स के अंदर जो हमारी हिल रेंजेस हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वाइडली कवर्ड
कवर्ड इन आवर कोर्स एज वेल एज आपको कहीं भी ऑनलाइन जाकर के ये सारी स्टैटिक ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन जो है आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवर्स इन इंडिया से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको हो। You must know the name of all major rivers in India and their tributaries. If I talk about Himalayan rivers starting from Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर सिस्टम्स की मेजर रिवर्स आपको पता होनी चाहिए, इनके सोर्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर कौन दूसरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए। इसको स्टडी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये बहुत ज्यादा रिवार्डिंग होने वाला है फ्रेंड्स, बिकॉज इफ वी स्पेंड आवर टाइम इन लर्निंग अबाउट इंडियन रिवर्स, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन हिमालयन रिवर्स and peninsular major rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, these rivers they are very very important for Indian agriculture as well, both in northern and central and southern India, and इसके साथ साथ ये जो इंडिया की वाटर सिक्योरिटी है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके लिए भी रिवर्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो वी मस्ट नो अबाउट दीज रिवर्स, इनका कोर्स कौन से स्टेट से फ्लो कर रहे हैं, कहां इनका सोर्स है और कहां जाके रिवर्स एंड हो रही हैं, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक फैक्ट्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो हमें इंडियन रिवर्स के बारे में पता होने चाहिए। इंडिया में मॉनसून की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Our agriculture is monsoonal in nature. We know that our kharif season of cropping is very very directly dependent on monsoons. So monsoons का इंडिया में अराइवल कैसे होता है, किस डेट के अराउंड होता है, इंडिया में मॉनसून्स का कवरेज कैसे होता है, किस इंडिया के रीजन में कितना मॉनसूनल रेनफॉल होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वी ऑल्सो मस्ट बी लर्निंग अबाउट मॉनसून्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन बायोजियोग्राफी, वेजिटेशन इंडिया में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमें वर्ल्ड ओवर वेजिटेशन के बारे में स्टडी करना है, तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली भी हम वेजिटेशन को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहां मिलते हैं, अंडमान निकोबार है, वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, द एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल दे आर सीइंग इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। इसी तरीके से डेसिडुअस वेजिटेशन इंडिया में कहां है, इंडिया में कॉनिफेरस वेजिटेशन कहां मिल रही है, ग्रासलैंड्स इंडिया के अंदर कहां है, एरिड वेजिटेशन इंडिया के अंदर कहां है, ऑल दीज डिफरेंट पार्ट्स along with India's map ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर वेटलैंड साइट्स, all the important areas in India which have been protected for biodiversity conservation, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको किसी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में ये पूछूं कि फॉर एग्जांपल रणथंभौर नेशनल पार्क है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रोटेक्टेड एरियाज को हम लोग जो है स्पेसिफिकली रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे, वहां पर बहुत अच्छे चांस है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। देन थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया, There are certain species which are endangered in India. For example, अगर हम राइनोस की बात कर रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं, एशियाटिक लॉयन की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत पॉपुलर स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, इनके बारे में हमारी नॉलेज भी काफी अच्छी है। बट देयर आर सर्टेन अदर स्पीशीज ऑल्सो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं तो हुलॉक गिबन है, पिग्मी हॉग है, जो रेड पांडा है। सेंट्रल इंडिया में हम लोग आते हैं, साउथ इंडिया में हम लोग जाते हैं, लॉयन टेल्ड मकॉक है। तो ऑल दीज डिफरेंट एनिमल्स विच आर थ्रेटेंड इंक्लूडिंग एक्वेटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो, वल्चर्स की बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो ये जो अलग अलग एनिमल स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड हैं और जिनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वी शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट दीज थ्रेटेंड स्पीशीज ऑल्सो, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. All the topics I have listed here, and all these topics are comprehensively covered in our gold and silver course features also. But we have to make sure कि हम जब भी ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे, हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस सामने रखा होगा, हम उस पूरे सिलेबस को पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन हमारा फोकस जो है कुछ टारगेटेड टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए, सो दैट हमें पता है टीयर 1 के अंदर, स्पेसिफिकली टीयर 1 के अंदर, टीयर 2 में तो ऑब्वियसली पूरा जो पेपर 1 है वो ज्योग्राफी को डेडिकेटेड रहेगा, तो उसमें ज्योग्राफी के आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी जो है आंसर करने पड़ेंगे, लिख के आंसर करने पड़ेंगे, वहां पर आपको चॉइसेस अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन टीयर 1 के अंदर वी हैव चॉइसेस अवेलेबल, ऑप्शंस अवेलेबल, एंड द क्वेश्चंस आर आल्सो फ्यूअर इन नंबर, अबाउट 5 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, एंड वी कैन टारगेट दीज स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड अटेम्प्ट ऑल these 5 to 10 questions correctly अगर हमारी प्रिपरेशन इफेक्टिव रही। ठीक है, सो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि इंडियन एग्रीकल्चर एंड एटलस, these two topics are covered comprehensively in our courses. Indian agriculture की बात करें, this is not directly related to geography, neither atlas is directly related to geography. कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो यहां पर इंडिया के जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं और इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स हैं,
हम ज्योग्राफिकली एंगल से भी इसको कवर करते हैं दैट विच फैक्टर्स दे आर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न, क्लाइमेट के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, इरिगेशन अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिसाइड होता है। लेकिन इंडिया में जो भी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स किस सीजन में ग्रो की जा रही हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ आईकार का रोल एंड फंक्शनिंग, not directly related to geography but this part is also very important and हम assume कर सकते हैं कि आईकार के रोल से जुड़े हुए जो नेक्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं डेडिकेटेड टू आईसीएआर, उसमें आपको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे जो आप ज्योग्राफी से यहां पर कवर कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसा है इंडिया का, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कैसे क्रॉपिंग की जा रही है। सिमिलरली हम देखते हैं कि खरीफ सीजन में, राबी सीजन में, ज़ैद क्रॉपिंग सीजन में कौन सी मेजर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उनकी ग्रोइंग की कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं। सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दे विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। फिर बात आती है एटलस की। अब एटलस में हम कैसे एटलस को स्टडी करेंगे, एटलस के ऊपर हमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होते हैं, कई बार पॉलिटी से इंस्पायर्ड होते हैं, कई बार हमारे एनवायरमेंट के सब्जेक्ट से इंस्पायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। Now these world heritage sites they are related to Indian culture, not directly to Indian geography. So ये जो इंडियन हेरिटेज साइट्स हैं वो इंडिया के कौन से हिस्सों में लोकेटेड हैं, कौन से स्टेट्स में लोकेटेड हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और वहां पर हमें ये सोचने को टाइम नहीं मिलेगा कि ये ज्योग्राफी को बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन, ये हिस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, बट एक्चुअल थिंग इज कि आपको एटलस की थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी एंड दिस एटलस स्टडी इज बीइंग डन बाय वेरियस एस्पिरेंट्स फॉर यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज एज वेल एज फॉर अदर एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये एटलस की जब भी आप स्टडी कर रहे हैं कुछ एरियाज पे हम लोग फोकस रखेंगे। इंटरनेशनली हम मिडिल ईस्ट के ऊपर जो इजराइल के आसपास का रीजन है वहां से हमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया अराउंड साउथ चाइना सी, अराउंड इंडियाज ईस्टर्न पार्ट जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इस पूरे रीजन के अराउंड जो मैप है उसको आप लोग एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे। एंड इन इंडिया वी विल आल्सो बी स्टडीइंग द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहां पर जो स्टेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स अक्रॉस आवर कंट्री, ये चीज भी आपको याद करके जाना पड़ेगा। डैम्स जो इंडिया में बने हुए हैं, उन डैम्स के पीछे जो रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं उनकी लोकेशन और उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ इंडिया के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि माउंटेन रेंजेस और रिवर्स का जो डेटा है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है। एटलस के ऊपर आप क्या करेंगे, एटलस के ऊपर आप हर दिन 5 to 10 मिनट्स जो है डिवोट कर सकते हैं। 5 to 10 minutes every day till 3rd of October will be enough to cover entire Atlas। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए इतना जो टाइम है आपके लिए काफी होगा। इंडिया के ऊपर आपको स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान देना है। इंडिया की जो लोकेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, हेरिटेज साइट्स, ठीक है, रामसर साइट्स, उनके आप बात करेंगे, माउंटेन रेंजेस की आप बात करेंगे, रिवर्स की आप बात करेंगे। पूरा जो इंडिया का फिजिकल मैप है वो आपको रटा होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जितना इंडिया का टेरिटरी है उसका फिजिकल मैप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो ज्योग्राफी का प्रिपरेशन है वो कवर होगा और ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी हमारे कवर होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सो एंडिंग दिस सेशन अगेन ऑन अ नोट जहां पर मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा कि एडुटैप का जो कोर्स अवेलेबल हो रहा है गोल्ड एंड सिल्वर, टारगेटिंग बोथ टियर 1 एंड टियर 2 एग्जामिनेशन। तो गोल्ड में हम टियर 1 टियर 2 दोनों को टारगेट कर रहे हैं। 5500 के अंदर एक कोर्स अवेलेबल है और अर्ली 15 कोड लगाकर आप फ्लैट 50% ऑफ भी इसके ऊपर पा सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू ओनली प्रिपेयर फॉर टियर 1 and not for tier 2 and interview, then you can subscribe for the सिल्वर कोर्स जहां पर आपको 4000 रुपीज के अंदर ये पूरा टियर 1 की प्रिपरेशन अवेलेबल हो रही है, वीडियो लेक्चर्स एंड हैंडआउट्स एज वेल एज यू विल आल्सो बी गेटिंग 15% फ्लैट डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड अर्ली15, राइट? सो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट से ज्योग्राफी की तैयारी में यहां पर जुट जाएंगे। बहुत कम एफर्ट के साथ हम आराम से 5 to 10 क्वेश्चंस वहां पर अपने करेक्ट मार्क करके आ सकते हैं। बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है हमें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स को और हमारी एटलस को। ठीक है, सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, राइट? और इसी तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।